अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं CNN, मैं हूं ज़ैनुल हसन और मैं हूं हुदा शाह। सबसे पहले आपको बताएं कि भारत ने बिला इश्तियाल जारहियत की हमारे शहरों पर हमला किया। फील्ड मार्शल की क़यादत में बहादुरी से दुश्मन को भरपूर जवाब दिया गया। हमारे शाहीनों ने चंद घंटों में दुश्मन के साथ जंगी तैयारों को मलबे का ढेर बनाया। हमारा फैसला कुन जवाब तारीख हमेशा याद रखेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली से खिताब, बोले सदर ट्रंप मुदाखलत ना करते तो जंग के नताइज तबाहकुन हो सकते थे। मज़ीद कहा कि पाक भारत जंग रुकवाने पर ट्रंप अमन के नोबल इनाम के मुस्तहिक हैं। पाकिस्तान की एक बार फिर से भारत को जामे मुज़ाकरात की पेशकश। कहा जंग जीत ली और अब हम अमन जीतने की ख्वाहिशमंद हैं। पाकिस्तान हमेशा दुनिया के अमन के लिए किरदार अदा करता रहेगा। भारत के साथ तमाम तस्फिया तलब उमूर पर जामे और नतीजा खेज मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। India sought to extract political gains from a human tragedy by spurning my sincere offer of an independent international investigation into the Pahalgam incident. Instead, it attacked our cities and targeted our innocent civilians. When our territorial integrity and national security were violated, our response was in accordance with the right of self-defense under Article 51 of United Nations Charter. Our valiant armed forces, under the stellar leadership of Field Marshal Syed Asim Munir, mounted an operation of stunning professionalism, bravery and acumen, repulsing the enemy's attack under Air Chief Marshal Zahir Babar Sidhu. Our falcons took flight and etched their answer across the skies, resulting in 7 of the Indian jets turned to scrap and dust. A decisive response. We have won the war, and now we seek to win peace in our part of the world. And this is my most sincere and serious offer before this august assembly of the world nations. Pakistan stands ready for a composite, comprehensive and result-oriented dialogue with India on all outstanding issues. India's unilateral and illegal attempt to hold the Indus Water Treaty in abeyance defies the provisions of the treaty itself, the inseparable right of our 240 million people on these waters. To us, any violation of this Indus Treaty represents an act of war. वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान में दहशत गर्दी के खिलाफ आवाज़ ज़ालमी सतह पर उठा दी है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में खिताब करते हुए बोले कि कलअदम TTP और BLA मजीद ब्रिगेड पाकिस्तान में दहशत गर्द हमलों में मुलव्विस हैं। मजीद बोले कि BLA के हमलों में जाफर एक्सप्रेस का सानिहा भी शामिल है। भारत पाकिस्तान में प्रॉक्सी दहशत गर्दी कर रहा है। फितना हिंदुस्तान और फितना ख़ारिज हम के दुश्मन बने हुए हैं। हम कई दहाइयों से दहशत गर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। 90,000 अफराद की कुर्बानियाँ दी और $150 अरब का नुकसान बर्दाश्त किया। For over 2 decades, Pakistan has been at the front line of global counter-terrorism effort. We lost 90,000 people of our country, babies, children, mothers, sisters, brothers, elderly people, doctors, engineers, and also suffered economic loss of $150 billion. What can be a bigger manifestation of our commitment to fight terrorism and erase it not only from the face of Pakistan, but from the face of this global world? We are a bulwark. Had these terrorists not been encountered by us, they would have been roaming on the streets of New York and London and God knows Far East. So I think this is our humble contribution. Today we face externally sponsored terrorism, particularly from foreign-funded groups such as the TTP, Fitna al-Khawarij, Fitna al-Hindustan, BLA and its Majid Brigade. Operating from Afghan soil, these groups are responsible for some of the most heinous attacks inside Pakistan, including the dastardly Jafar Express train incident earlier this year, the train was hijacked and 400 people for days and weeks, and mercifully, by Allah Almighty's grace, our armed forces and law enforcing agencies were able to recover them. Afghan interim government to take effective action against terrorist groups and to ensure that Afghan soil is not used for terrorism against any country. पाकिस्तान का फौरी तौर पर आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत कायम करने का मुतालबा। वज़ीर आज़म ने फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी को सरासर दहशतगर्दी करार दे दिया। शहबाज शरीफ ने कहा कि गज़ा में जो कुछ हो रहा है वो बैनुल-अक़वामी नाकामी है। फ़लस्तीनियों पर जुल्म तारीख का तारीख तरीन बाब है। 2 रियासती हल के नतीजे में फ़लस्तीनी रियासत को 1967 से पहले के बॉर्डर्स पर कायम किया जाए और अल-कुद्स शरीफ को उसका दारुल हुकूमत बनाया जाए।
मज़ीद कहा कि आज दुनिया के दीगर मुल्कों से ये कहता हूँ कि फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कतर की भरपूर हिमायत का अज़्म। कहा यूक्रेन के तनाज़े का पुरअमन हल चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कश्मीरी एक दिन हक़ खुद इरादियत हासिल करके रहेंगे। कश्मीरियों को उनका हक़ खुद इरादियत अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के ज़रिए हासिल होगा। Will gain its fundamental right to self-determination through an impartial plebiscite under the auspices of this very organization, United Nations. The Israeli leadership has unleashed a shameful campaign against the innocent Palestinians, which history will always remember as one of its darkest chapters. भारतीय सहाफ़ी को चालाकी उल्टी पड़ गई। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की हाज़िर जवाबी शहबाज शरीफ ने एक ही बार में गोदी मीडिया के तमाम जहाज गिरा दिए। भारतीय सहाफ़ी ने तंज़ीह अंदाज में सवाल किया था कि पाकिस्तान दहशतगर्दी कब ख़त्म करेगा। शहबाज शरीफ के जवाब पर कहकहे लग गए जब उन्होंने कहा कि भारत की मुसल्लत करदा दहशतगर्दी पाकिस्तान ख़त्म कर रहा है। भारतीय सहाफ़ी खुद खबर बन गया। आलमी फोरम पर भारत की सुबकी हुई। हर भारतीय वार की तरह प्लांटेड सहाफ़ी ने भी भारतीय शर्मिंदगी में इजाफा किया। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान दरीना ताल्लुकात बुलंदियों की जानिब गामज़न हैं। वाइट हाउस में दोनों ममालिक की क़यादत के दरमियान खुशगवार मुलाकात मरकज़े निगाह बन गई है। अमरीकी सदर से पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की मुलाकात 1 घंटा 20 मिनट तक जारी रही। वज़ीर-ए-आज़म हाउस एलामिया के मुताबिक मुलाकात में इलाक़ाई सलामती और दहशतगर्दी से निपटने के ताउन पर गुफ्तगू की गई। शहबाज शरीफ ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तानी कोशिशों के एतराफ़ पर अमरीकी सदर को सराहा। सदर ट्रंप ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल को अजीम रहनुमा करार दिया। पाक अमरीका ताल्लुकात में नई जहत। अमरीकी सदर से पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की अहम मुलाकात। व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में हुई मुलाकात 1 घंटा 20 मिनट तक जारी रही। इस मौके पर अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस और वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो भी मौजूद रहे। सदर ट्रंप ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को अजीम रहनुमा और शानदार शख्सियत करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने अमरीकी सदर को अमन का अलमदार करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस एलामिया के मुताबिक मुलाकात में इलाकाई सलामती और दहशतगर्दी से निपटने के ताउन पर गुफ्तगू हुई। सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस शोबों में ताउन मजीद बढ़ाने पर जोर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तानी कोशिशों के एतराफ़ पर अमरीकी सदर को सराहा। शहबाज शरीफ ने कहा कि अमरीकी सदर ने जनूबी एशिया में एक बड़ी तबाही टालने में मदद फराहम की। पाक अमरीका तिजारती मुआहिदे पर सदर ट्रंप से इजहार तशक्कुर भी किया। वज़ीर-ए-आज़म ने गजा, मगरबी किनारे समेत मशरिक़ वस्ता में अमन बहाली के लिए मुस्लिम रहनुमाओं से मुशावरत पर भी ट्रंप की तारीफ की। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान में ज़राअत, IT और दीगर शोबों में सरमायाकारी और डोनाल्ड ट्रंप को दौरा पाकिस्तान की बाज़ाब्ता दावत भी दी। ICC ने पाकिस्तानी क्रिकेटर हारिस रऊफ को 6-0 का इशारा करने पर सजा सुना दी है। साहबजादा फरहान को वार्निंग दी लेकिन सजा से बच गए। सूर्य कुमार यादव सियासी बयानबाजी पर सजा के मर्तकब करार पाए गए।